हेलो एवरीवन, क्या चल रहा बाकी? फाइन। आई होप इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है। इकोनॉमिक्स में बातें करने के लिए मेरे पास ढेर सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास मेरे साथ बातें करने के लिए बहुत कुछ है। डेफिनेटली इकोनॉमिक्स इज सम ऑफ द वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट जहाँ पर हम लोग स्टार्ट करना चाहें तो कहाँ कहाँ से डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, बट वो सब हम ग्रेजुअली बनाएंगे। अभी तक तो हम पहले चैप्टर पे ही है, इंट्रोडक्शन पे ही है। हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स से पहले इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब प्रीवियस लेक्चर में समझा था। क्या आप मेरे साथ है? बढ़ू में आगे। आज हम शुरू करने वाले मेन वर्ड, दैट इज अगला जो हमारा हेडिंग आ रहा है, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। दिख रहा है सबको? बेटा मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट समथिंग डिफरेंट। मैं आपको पहले कह चुका हूं, अप्लाइंग द रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इनटू द बिजनेस वर्ल्ड so that it will help us in decision making. Whenever you talk about business, when you talk about management, you need to understand the only crucial and important thing in business and management is decision making. What you are today is dependent on what decisions you have taken in past. What you are going to be tomorrow is again going to be dependent on what decisions you are going to take today. So your future is all over dependent on your decisions being taken today at this point of time. Similarly, if you look into the successful business organizations like Tata's, Reliance, that is Ambani's, even talking about Facebook, Mark Zuckerberg, or some of the biggest industries, Bill Gates, Warren Buffett. So if you look into these kinds of successful industrialists today, you'll come to a common conclusions that they have taken the right decisions at the earlier stage of their business. Since they have taken the right decisions, they are successful today, they are so grand today. So today's success was not dependent on something done today, it was dependent on done in past. Similarly, it's not that they have not taken the wrong decisions, they might have taken the wrong decisions many times in their life, but again coming out of those wrong decisions and proving them correct and taking some corrective action against it is a part of the life. So talking about our subject, business economics is all about helping the management, helping the business organizations to take decisions at the correct time. So organization need to take decisions all the time, and if they want to take the decisions, they have to make sure that they take these kinds of decision at the right point of time. So our all subject is dependent on taking these kinds of decisions, that too at the correct time. I hope everyone is with me, right? Sure. बढ़े आगे? चल, so माइक एडजस्ट कर लेता है। अभी आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी, जो हमने डिस्कस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारी पोजीशन बहुत ही सिंपल सी है कि हमने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया और अब हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक ब्रीफ इंट्रो भी ले लिया है। सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरी क्या बोलती है। अब आप समझ सकते हो, जो मैंने अभी आपको इन शॉर्ट समझाया उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल। थोड़ा एग्जांपल के लैंग्वेज पे ध्यान देना, घुमाया फिरा लैंग्वेज है। अब क्या बोला है? हैविंग अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज। फॉर दिस लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। एक सिचुएशन दी उन्होंने जहां पर बोला मिस्टर जी राममूर्ति, दिखा सबको, Mr. G. Ramamurthy, the CEO of Worldwide Food Limited, right? Ramamurthy CEO है हमारा। On completion of his presentation, turned to its board of directors. इतना लाइन आपको पढ़ के समझ में आ रहा है क्या सीन क्रिएट किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग चल रही है, सामने आगे सारे बीओडी बैठे हुए हैं और सीईओ ने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद राममूर्ति जो हमारा सीईओ, उन्होंने क्या कहा एंड रेज द क्वेश्चन, उन्होंने तुरंत पूछा, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट, what you say, shall we go into the soft drink business? अब आप समझ रहे हो, वो एक सवाल पूछ रहा है, मतलब आपको इतना समझ के चल रहा है, एक सवाल आगे खड़ा हुआ है, वो पूछ रहा है क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस शुरू करें क्या? मतलब ऑब्वियसली उसने प्रेजेंटेशन भी उसी के बारे में दिया रहेगा। कंपनी का ऊपर नाम देख रहे हो तो वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड है, मतलब शायद कोई फूड प्रोडक्ट्स, मे बी लाइक बिस्किट्स, कुकीज, चिप्स या कुछ इन काइंड ऑफ नमकीन काइंड ऑफ बिजनेस उसका चल रहा रहेगा। सो अभी वो क्या पूछ रहा है, प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछ रहा है क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस शुरू करें कि नहीं करें। आई होप यू गेटिंग लिंक विद व्हाट डिस्कशन आई मेड जस्ट बिफोर कि इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, राइट? डिसीजन का डिस्कशन चल रहा है। क्या बोला अगला, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उठ के क्या बोला, गिव अस सम टाइम सर। रिमार्क स्वामीनाथन, नामों में कंफ्यूज नहीं होना, राममूर्ति कौन थे? सीईओ। स्वामीनाथन अंकल क्या बोले, गिव अस सम टाइम, यू आर टेकिंग
You are asking us to approve a major decision which will have a long-term impact on the direction of the company. अब समझ रहे हो, वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहे हैं। शायद उनका फूड का बिजनेस है, कुछ प्रोडक्ट बना रहे रहेंगे, अब वो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेसेस में जा रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर बिजनेस। और अब जब वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इसलिए उसने क्या बोला, अगर आप नया प्रोडक्ट चालू करो तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। इसको आप लोग मैनेजमेंट में वर्ड यूज करते हो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। Understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business, that is food, said रामामूर्ति। तो सीईओ अंकल जो रामामूर्ति को कन्विंस कर रहे हैं स्वामीनाथन अंकल को, देखो हमारे बिजनेस से नजदीक है, बट अब अगेन बट आ गया, अंकल जी चिड़ेंगे, बट द कॉम्पिटिशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ, दे आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस ऑफ ईयर्स, रिमार्क्ड अनदर बोर्ड ऑफ मेंबर। दूसरा मेंबर क्या बोला, कॉम्पिटिटर खड़े ऑलरेडी बाहर, अब संभाल के चले, नया बिजनेस कैसे चालू करने की बात कर रहे हैं। दैट इज राइट, but we must not forget that the statistics shows that there is still room for growth in this market and also food business is at its maturity। अगेन रामामूर्ति अंकल कन्विंस कर रहे हैं। दो पॉइंट इसमें आपको समझने, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि आपको पता होना चाहिए देयर इज अ रूम फॉर एक्सपांशन, ग्रोथ, मतलब मार्केट में अभी भी पोटेंशियल है, अभी भी कैपेसिटी, भले इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं फिर भी हम अगर आज मार्केट में आएंगे तो भी हम ग्रो कर सकते हैं, इसकी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारा जो पुराना बिजनेस है मेच्योरिटी पे आ चुका है, मेच्योरिटी मतलब अब इसमें कुछ नया करने के लिए रहा नहीं है, उसका ग्रोथ खत्म हो चुका है। देखो बिजनेस एक बार ग्रो होता है फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहां पे आपको पता है इतने ही मेजॉरिटी कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अरे कुछ समझ रहे, डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड tried entering the soft drink market and failed miserably, marked अशोक अग्रवाल, another board member। दूसरा बोर्ड अशोक अंकल क्या बोल रहे हैं, भाई देखो 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 हमारा जो फूड में कॉम्पिटिटर था स्वाति फूड, उसने ऑलरेडी सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस चालू किया था और फेल होकर लॉस करके उसने बंद कर दिया उसको। मोर ओवर द प्रोजेक्शंस यू आर शोइंग आर बेस्ड ऑन द लास्ट 10 years, जो उन्होंने अभी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया था, रिपोर्ट दिया था, वो 10 साल का डेटा है पास्ट। What is the guarantee that the trend will continue, he questioned. Also we should not forget that Indians have become health conscious। देखो कितना इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, हेल्थ कॉन्शियस, who knows tomorrow what will people prefer। आजकल लोग उल्टा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे सॉफ्ट ड्रिंक खराब है मत पियो, उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड रहता है, खराब है, पर क्या पता लोग क्या प्रेफर करेंगे। बट अगेन इसमें डिबेटेबल है, आप इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो, इतना लोग बोलने का बावजूद भी उसकी डिमांड कम नहीं होती, हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक हमेशा। तो अगेन देयर इज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ कंपनी। दिल्ली में हमने ऊपर वर्ड पढ़ा था, दिल्ली में उनके सामने कि क्या करें, राइट, इजंट इट। वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल, बिलीव मी, आई हैव गिवन मच थॉट्स ऑफ these ifs and buts। My people have spent many days analyzing all available data to arrive a judgment। Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment। मतलब जो एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, जिसको आप SP वगैरह में पढ़ते होंगे, ये इधर भी पढ़ेंगे, हम अकाउंट्स वगैरह में भी डिस्कस करेंगे। तो जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर एवरेज रेट से ज़्यादा कमाओगे, मतलब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। देखो कैसे लालच दे रहे हैं अंकल, राइट। तो आप अबव एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑन इन्वेस्टमेंट, उसके रिटर्न है उसके ऊपर कमाओगे, राइट। क्या in the market, a return that will be more than what we are earning in a food industry। We are already working on a detail of production cost, pricing, distribution, financing। प्रोडक्शन कितना कॉस्ट लगेगा, क्या सेलिंग प्राइस रखने की, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मार्केट तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचेगा कैसा, फाइनेंसिंग, हमको जो प्रोडक्शन करने के लिए पैसा लगेगा वो लोन कैसे लेंगे, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, क्या करेंगे। I fear if we wait for long, we will be missing an opportunity that may not come again for long, so let's go ahead and make the most of it, replied Yamak Ramamurthy। इस तरीके से अंकल कन्विंस करा। अब आगे क्या हुआ, अब अपन थोड़ी कहानी सुन रहे हैं, अरे कम ऑन, वो एक एग्जांपल था समझने के लिए। आगे जो भी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं लिया वो उनका आपस का डिसीजन है, इतना पर्सनल मत जाओ किसी कंपनी में। अपना मुद्दा क्या था, उन्होंने क्या बोला है, what do you notice in the hypothetical example given above, the management of the company is faced with the problem of decision making। अरे समझे, as we aware, यही तो प्रॉब्लम है डिसीजन लेने का। as we aware that survival and success of any business depends on sound decision। दो वर्ड यूज किए, सर्वाइवल और सक्सेस। आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, और जिंदा रहे तो आगे कितना ऊपर तक पहुंचोगे, किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन पे।
डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट एफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग अ डिजायर्ड एंड, राइट। एक सही अल्टरनेटिव ऑप्ट करना जिससे आपका जो डिजायर्ड एंड है, डिजायर्ड टारगेट, वो अचीव हो सकते हैं। या फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, या तो एक अल्टरनेटिव लोगे या मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के कॉम्बिनेशन में काम करोगे। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ क्या? फिजिबल अल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग में आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है क्या अच्छा है नहीं है। फिजिबल अल्टरनेटिव वो अल्टरनेटिव जो फिजिबल है, जो आपके लिए परवड़ने लायक है, पॉसिबल है आपके लिए। तो समझो 10 अल्टरनेटिव है, उसमें से 2-3 अल्टरनेटिव अपने लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो बच्चे अपने 7, उन 7 में से कौन सा अच्छा है वो चूज करना, मतलब अलाउ आप क्या कर रहे हो, उसका मतलब इवैल्यूएट कर रहे हो क्या? फिजिबल अल्टरनेटिव। फिर आप रैशनल जजमेंट लगाते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे आप सोचोगे कि मेरे ख्याल से, आप जजमेंट लगाओगे कि आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, राइट क्या? और उसके बाद क्या करोगे? एंड द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर अल्टरनेटिव विच द डिसीजन मेकर फाइंड्स एज मोस्ट सूटेबल। फिर आप वो चॉइस करोगे जो आपको एज अ डिसीजन मेकर लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। बढ़ूं आगे, राइट। ये इसका ब्रीफ में ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, बढ़ूं क्विकली। As explained above, the question of choice arises because our productive resources such as land, labor, capital management are limited and can be employed in an alternative uses. तो आपके पास जो ये बेसिक चीज़ें हैं वो लिमिटेड है, तो आप अल्टरनेटिव जगहों पे यूज कर सकते हो, सारे अचीव नहीं हो सकता आपके लिए। Therefore, most efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. Right? The management of the business unit generally needs to take strategic, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। अब ये 3 वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। स्ट्रैटेजिक डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। व्हाट इज स्ट्रैटेजिक डिसीजन? जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन। जैसे छोटा सा एग्जांपल, एयरटेल। एयरटेल को मैं 3 लेवल में बांटता हूँ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल स्ट्रैटेजिकल डिसीजन लेता है, देखो वर्ड लिखा है वहां पर। मिडिल लेवल जो बीच का मैनेजमेंट होता है वो टैक्टिकल डिसीजन लेता है, और तीसरा वाला ऑपरेशनल लेता है। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर एक का अपना एक काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को बिजनेस, एयरटेल ने सोचा अपना लोगो चेंज करते हैं। अब एयरटेल ने अपना लोगो चेंज करने का कि नहीं करने का, और लोगो चेंज करने से क्या लॉन्ग टर्म आपका ब्रांड वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये ऊपर सोचा जाएगा। तो ऊपर डिसीजन लिया जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट क्या? सुनील मित्तल अगर आपको बता रहेगा, भारतीय एयरटेल सीईओ है ऊपर, तो वो बैठ के डिसीजन लेंगे कि अपने को लोगो चेंज करने से अपने ब्रांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या मार्केटिंग टूल बनेगा अपने लिए एक अच्छा सा। तो उन्होंने लोगो चेंज किया। आपको पता रहेगा आज से 7-8 साल पहले एयरटेल ने अपना लोगो चेंज किया था, पहले अलग लोगो था उसका। तो एयरटेल नया लोगो लेकर आए, तो लाना नहीं लाना ये ऊपर डिसीजन लिया गया। फिर लाने के बाद उसको अलग अलग डिविजन्स में कैसे करना, उसकी क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा, मतलब उससे अपने को कितना कितना खर्चा करना पड़ेगा, क्या करना होगा, मतलब जहाँ पे उन्होंने पुराने लोगो लगाए रहेंगे वो चेंज करने पड़ेंगे, जो दुकानों के बाहर पे बोर्ड लगाए रहेंगे वो चेंज करने पड़ेंगे। तो वो सब के बारे में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो टैक्टिकल बीच वाला मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। और प्रैक्टिकली जाके हर दुकान पे जाके वो लोगो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वेबसाइट पे लोगो चेंज हुआ है कि नहीं, ये सब देखने का किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो क्या कौन से डिसीजंस लेता है? ऑपरेशनल डिसीजंस, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे काम होंगे। आ रहा है समझ में, राइट? अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस आर इलस्ट्रेटेड बिलो। नीचे दिए गए एग्जांपल है जो आपको एक बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगे डिसीजन मेकिंग के, वो बताते हैं। जैसे शुड आवर फर्म बी इन अ बिजनेस, सबसे बेसिक सवाल, जिए तो जिए क्यों, क्या हम बिजनेस चालू रखें कि नहीं रखें? शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट एनवायरमेंट, मार्केट इतना कॉम्पिटेटिव तो लॉन्च करें। जैसे ऊपर के एग्जांपल वो बोल रहे थे सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करे कि नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिशन है। इफ फर्म डिसाइड ऑन लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट विच अवेलेबल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड, अगर आप सोचते हो प्रोडक्ट लॉन्च ही करना है तो कौन सी टेक्निक से, क्या आप बड़ी मशीनरीज लें या छोटी मशीनरी लेके लेबर फोर्स बढ़ा के लें? आपको नहीं लगता जहाँ पे ऑटोमेटिक काम रहता है वहाँ पे आदमी लोग कम लगता है, और जहाँ पे आप मशीन छोटी लेते हो जो इतनी ऑटोमेटिक नहीं होती है तो आपको आदमी ज़्यादा लगते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने यूज़ करना, कौन सी टेक्नोलॉजी और टेक्निक यूज़ करनी है आप लोगों ने? बराबर क्या? फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्यूर, प्रोक्यूर मतलब मेक इट अवेलेबल, कहाँ से खरीदेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम बाय, अवेलेबल कहाँ से करेंगे, मतलब बाय कहाँ से करेंगे, नेसेसरी इनपुट्स एंड व्हाट प्राइस सो एज टू हैव द कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। तो पहली बात तो कहाँ से खरीदें, मतलब मैं छोटा एग्जांपल दूं, अगर मैं आज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ चलो मैं प्लास्टिक के बॉटल्स, टपरवेयर को अपन कॉम्पीट करेंगे और प्लास्टिक के बॉटल्स बनाएंगे, तो अगर मैं मार्केट में ये बनाने की बात कर रहा हूँ तो पहला सवाल मेरे पास आएगा जो रॉ मटेरियल लगता है मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लाऊँ मतलब क्या, मैं उसको इम्पोर्ट करूँ
कि इंडिया में से खरीदूँ, इंडिया में से भी खरीदूँ तो कौन सी सिटी में कहाँ उसके होलसेलर्स अवेलेबल है, कहाँ से खरीदूँ, और ऐसे प्राइस पे मैं खरीदूँ कि मेरे कॉम्पिटिटर से मेरे को एक कॉम्पिटिटिव एज मिले। शायद कॉम्पिटिटर रॉ मटेरियल 40 रुपये पे खरीद रहा है तो मुझे 38-36 रुपीज़ में भी मिल जाए तो 1-2 रुपये का मेरे को पर यूनिट फायदा हो जाएगा, तो मैं उससे कंपेटिटिव एज में रहूँगा। क्यों? उसकी जितनी भी सेलिंग प्राइस रखूंगा तो मैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल महंगे प्राइस में जा रहा है और वही रॉ मटेरियल मुझे सस्ते प्राइस में आ रहा है। क्या कल जाके उससे मैं मार्केट में 1-2 रुपया कम भी रखूँ तो भी मैं उतना ही प्रॉफिट कमाऊंगा जितना वो कमा रहा है, क्योंकि मैं रॉ मटेरियल में बचा रहा हूँ मेरे। इजंट इट सो? बढ़ूँ मैं आगे? पक्का? चले फिर उसके बाद अगला क्या पूछा है, शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम द फर्म्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने आता है। जैसे समझो मैं कोको कोला के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोको कोला कंपनी को क्या करना है, कोल्ड ड्रिंक बनाना है, वो तो बनाता ही वो सॉफ्ट ड्रिंक। अब सॉफ्ट ड्रिंक जिस बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, ग्लास बॉटल्स और वो टिन के कैन में जो पैकिंग करते हैं, क्या इन्होंने ये प्लास्टिक बॉटल्स एंड कैन्स किसी से बाय करना, मतलब किसी और को बोलेगा कि तू बना के दे मेरे को जैसा चाहिए, या खुद ही मैन्युफैक्चर करना? इसको बहुत अच्छा नाम दिया जाता है मेक और बाय डिसीजन। शुड आई मेक इट माई सेल्फ और आई शुड बाय इट फ्रॉम समवन एल्स? तो ये भी कंपैरिजन करना पड़ता है। हर बार खुद बनाना परवड़ता नहीं, काफी बार बाहर से खरीदना ज्यादा परवड़ता है, डिपेंडिंग। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने पड़ेंगे। हम यहाँ पे आंसर्स नहीं दे रहे, हम यहाँ पे डिस्कस करें ऐसे क्या क्या सवाल हो सकते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़े होते हैं। इजंट इट सो? चले पक्का? अगला क्या दिया हुआ है, हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस शुड बी द फर्म सेल। ऑब्वियसली प्रोडक्शन कर रहे हो मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करते चलो ऐसे नहीं होता, आपको समझ होना चाहिए कि आपने कितना प्रोड्यूस करना है, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, और सामने कौन आपका वो जिसको बेचोगे या जो प्राइस पे बेचोगे क्या प्राइस होनी चाहिए। डन। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन अ मार्केट, एक एक करके। हाउ विल बी द प्रोडक्ट प्लेस्ड इन अ मार्केट मतलब क्या, मार्केट में आप उसको कैसे प्लेस करोगे, क्या आप दुकानों थ्रू बेचोगे, रिटेलर थ्रू बेचोगे, क्या आपने मॉल्स लगाओगे, क्या करोगे, हाउ विल सेल इट, विच कस्टमर सेगमेंट शुड वी फोकस एंड हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस। तुम उसको कैसे, वापस उसी पॉइंट में आऊंगा पहले वाले, प्लेस इन मार्केट मतलब तुम उसको कहाँ रखोगे, क्या वो तुम्हारी नेसेसिटी है, क्या वो नेसेसिटी का पार्ट बनेगा, क्या वो लग्जरी का पार्ट बनेगा, क्या वो स्टेटस सिंबल बनेगा। जैसे कुछ प्रोडक्ट कुछ काम की नहीं होते, सिर्फ स्टेटस सिंबल, डायमंड्स, गोल्ड रिंग्स, ये सब स्टेटस सिंबल्स है, यूटिलिटी उसकी कुछ नहीं है। या आपको नेसेसरी प्रोडक्ट रखोगे जो लोगों के शायद काम आएगा, तो तुम उसको कैसे प्लेस करना चाहते हो, तुम कौन से कंज्यूमर सेगमेंट को फोकस कर रहे हो, क्या तुम अमीरों को फोकस कर रहे हो, मिडिल क्लास को कर रहे हो, गरीबों को कर रहे हो, क्या तुम मेल को कर रहे हो, फीमेल को टारगेट कर रहे हो, क्या तुम यूथ को कर रहे हो कि एजेड लोगों को कर रहे हो, क्या तुम इन छोटे बच्चों को कर रहे हो, तुम्हारा टारगेट कौन है, कस्टमर कौन सा टारगेट हो रहा है तुम्हारा। इजंट इट सो? उसके बाद हाउ टू इंप्रूव द एक्सपीरियंस, ये तो बेसिक चीज है, उनका एक्सपीरियंस कस्टमर का कैसे बढ़ाएं। विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी चूजन, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चूज की है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, देयर आर बेसिक टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। एक होती है पेनिट्रेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पेनिट्रेटिंग बराबर, और एक पेनिट्रेटिंग रहती है और एक स्किमिंग बोलती है। स्किमिंग एक बहुत अच्छा नाम है इसका, आपको आगे आएगा, मैं सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। एक स्किमिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, एक पेनिट्रेटिंग होती है। स्किमिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, आप लोग पहले प्रोडक्ट का प्राइस है ना ज्यादा रखते हो जो वो नया लॉन्च होता है, और जैसे जैसे वो पुराना होता है उसकी प्राइस कम होती है। दिस इज स्किमिंग टाइप ऑफ थिंग। पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, पहले आप प्रोडक्ट की प्राइस कम रखते हो, फिर मार्केट में एक बार प्रोडक्ट घुस गया उसके बाद आप उसकी प्राइस बढ़ाते हो। इट इज नोन एज पेनिट्रेटिंग। इन शॉर्ट दो चीजें, नाम छोड़ दो, कॉन्सेप्ट ये है। एक ऑप्शन है पहले कम भाव पे मार्केट में लॉन्च कर प्रोडक्ट को, फिर धीरे धीरे उसका भाव बढ़ा डाल। दूसरा पहले भारी भाव पे लॉन्च कर, फिर धीरे धीरे कम कर। अभी तू बोल कौन सी पॉलिसी अच्छी होती है। अब टेक्निकली कोई अच्छी और खराब नहीं होती है, आपको सिचुएशन और सिनेरियो देख के समझना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या खराब है। किसी के लिए कोई खराब रहेगा, किसी के लिए कोई सही रहेगा। जैसे स्किमिंग पॉलिसी जहां पे आप पहले प्राइस ज्यादा रखते हैं, लेटर ऑन यू फॉल द प्राइस, रिड्यूस द प्राइस, इज फेवरेबल, इज प्रेफरेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल फोन्स पहले लॉन्च होता है, आईफोन शायद 60,000 पे लॉन्च होता है, बाद में 40-30 पे आ जाता है, राइट। ऐसे प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक में क्यों बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जहां पर टेक्नोलॉजी, जहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि नया मोबाइल फोन बनाने के लिए कुछ नया इन्वेंशन करना पड़ता है, उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ज्यादा प्राइस इसलिए रखते हैं क्योंकि दे वांट टू कवर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट।
तो इनिशियली वो अपना R&D जो कॉस्ट होता है वो आपसे रिकवर कर लेते हैं, और फिर एक बार वो रिकवर हो गया फिर धीरे धीरे उसका प्राइस कम होता जाता है, क्योंकि अब उनको अगले प्रोडक्ट का रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट रिकवर करना है। अरे कुछ समझ में? तो वो प्रोडक्ट जिसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो एक टाइम के बाद आउटडेटेड हो जाएंगे, उनकी लाइफ एक लिमिटेड है। एक मोबाइल फोन आया वो 2 साल 3 साल चलेगा, उसका नया आ जाएगा, पुराने वाले का प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपको पता है आपके पास 2-3 साल की लाइफ है, तो जो भी वसूल करना है इस मोबाइल से वो 2-3 साल में ही करना है। तो अब इसलिए क्या करते हो, पहले प्राइस ज्यादा रखते हो, बाद में जैसे वो पुराना होता जाता है प्राइस कम करते हो, बनता है। तो उसके बाद अगला कंसेप्ट क्या हो जाता है तेरा दूसरा, प्राइस क्या करने का, पेनिट्रेटिंग में पहले क्या करने का, कम फिर बढ़ा देने का। ये कहाँ एग्जाम्पल देखोगे, जियो में। जियो जब लॉन्च हुआ तो जियो ने लॉन्च होते तक पहले क्या किया, प्राइसेस क्या करी, एकदम कम रखी, एकदम बॉटम, फ्री 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 धमाका दे दनादन चला। अब क्या हो गया, अब आगे लाइन पे बरोबर, अब क्या करना चालू कर दिया, मार्केट में अब जियो सेट हो गया, तुम सबने जियो का मोबाइल ले लिया, सामने वोडाफोन इन लोगों ने भी आपको बोल दिया था अगर आपके पास हमारा सिम एज ए सेकेंड सिम है तो तुमको मंथली भी रिचार्ज मारना पड़ेगा एक्टिव करने के लिए। तो काफी लोगों ने तो बाकी सिम कार्ड्स बंद कर दिए। अब क्या हो गया, अब जियो आ गया लाइन पे, आपसे बराबर पैसे ले रहा है, इजंट इट सो? तो किस तरीके से वो आपसे स्ट्रैटेजी फ्रेम कर रहा है, दैट कम्स अंडर द विच मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शुड बी चूजन, हाउ मच शुड बी मार्केटिंग बजट, कितना खर्चा करना है, क्या ऐड करनी है, तो ऐड में कोई मॉडल वगैरह लाना है। जैसे आपने अगर कभी भी देखा रहेगा, रिलायंस की एक बहुत अच्छी बात है, रिलायंस जो मोबाइल फोन जो कम्युनिकेशन था पहले और अभी जो जियो है, पहले कम्युनिकेशन था, वो लोग कभी बड़े बड़े मॉडल्स और एक्टर्स को अपने ऐड में नहीं लेते थे, नॉर्मल किसी को लेते थे। फिर सारी कंपनीज ने यही दिमाग लगाना चालू कर दिया भाई मोबाइल फोन्स में किसी दूसरे मॉडल को लेते, बट बड़े एक्टर्स को नहीं लेते। दे डोंट स्पेंड टू मच ऑन मार्केटिंग इन दैट वे। अरे समझे? तो कितना स्पेंड करना नहीं करना, अरे बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आप जब बिजनेस में बैठते हो ना बेटा, सोचो थोड़ा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस इन द लाइफ एंड इतने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। एक छोटा डिसीजन तुम्हारे बिजनेस को बहुत इंपैक्ट कर सकता है, छोटा डिसीजन। यू कांट टेक द डिसीजन मेकिंग सो लाइटली, डिसीजन मेकिंग इज सो इंपॉर्टेंट थिंग, छोटे छोटे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने लाइव क्लासेस में बहुत बार दिया हुआ है। आपको पता है, आपको सारी टेलीकॉम कंपनीज ने पिछले साल येड़े में निकाला है, मजाक नहीं कर रहा, सच्ची में पागल बनाया उन्हें सारी टेलीकॉम कंपनीज ने। क्या किया इन लोगों ने पता है? टेलीकॉम कंपनीज ने हमारे साथ धोखा। कैसे धोखा किया इन लोगों ने पता है? पहले आप जो मंथली रिचार्ज मारते थे वो 30 डेज का होता था, पता है आपको? अब मंथली रिचार्ज हो गया 28 डेज का। आपने नोटिस भी नहीं किया, आपने बोला छोड़ चल 2 ही तो दिन कम हुआ। आपको पता है 3 महीने वाला रिचार्ज पहले 90 दिन का होता था, अब 84 डेज का होता है। अब उसको 3 महीना बोलते हो, बट इट जस्ट फॉर 84 डेज। आप समझ रहे हो? पहले रफली लो 30 दिन का 1 महीना है अगर, तो पहले तो साल में 12 बार रिचार्ज मारता था 30 दिन वाले। अब तेरे को नहीं पता, जब उन्होंने 28 दिन कर दिया ना, अब एक साल में तेरे से 13 बार रिचार्ज होगा। क्योंकि अगर पर मंथ 2 दिन मैंने घटा दिए तो 12 महीने के 24 दिन घट गए, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना तेरा कम हो गया। इन शॉर्ट तेरे को 1 महीने का ज्यादा पे करना पड़ेगा। आप समझे? आपको सिर्फ वो 2 दिन लग रहा था, बट वो 2 दिन कम करके आपको इतना जबरदस्त तरीके से पागल बनाया गया है कि ऑटोमेटिकली आप लोगों से जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो एक साल में समझो 12 बार चार्जेस लिए जाते थे, तो अब एक साल में आपसे 13 टाइम चार्जेस लिए जाएंगे। आपको इनडायरेक्टली उन लोगों ने लूट लिया। तो लूटा मतलब कैसे लूटा? तो लीगली लूटा, इन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया। दैट वाज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। आप समझ रहे हो? आई होप यू गेटिंग इट। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है आप लोगों से पैसे निकलवाने का। लास्ट वाला क्वेश्चन उन्होंने एक एग्जांपल दिया, हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसको कैसे ओवरकम करना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारे एरियाज है जहां पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आता है। डिसीजन मेकिंग ऑन द above as well similar issues is not simple and straightforward, as the economic environment in which the firm functions is highly complex and dynamic. The problem gets aggravated because most of the time the decisions are to be taken under the conditions of imperfect knowledge and uncertainty. प्रॉब्लम और कब बढ़ जाता है, क्योंकि आज आप डिसीजन ले लेते हो, कल जाके पता नहीं क्या अनसर्टेनिटी है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अभी कोरोना के वक्त किसी ने शायद सोचा रहेगा कि ठीक है यार सिर्फ 21 दिन ही लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद खुल जाएगा। उन्होंने वो एंगल से कुछ डिसीजंस ले लिए होंगे, बाद में सिचुएशन बदल गई, तो देयर वाज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में जब आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा और अगर आप डिसीजन लोगे तो देयर इज अ हाई रिस्क कि डिसीजन शायद सही भी हुआ बट गलत भी तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन दैट केस बढ़ूँ आगे। डिसीजन मेकिंग देयरफॉर requires that the management be equipped with
डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, मैनेजमेंट का क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, किस तरीके से तैयार होनी चाहिए, विथ प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक। उनका सही तरीका होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, और एनालिटिकल मतलब कंपेरेटिव टूल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए कंपेरिजन करने के लिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स, अब अपन सब्जेक्ट पे आ रहे हैं, these needs of the management by providing a large corpus मतलब ग्रुप ऑफ थियोरीज एंड टेक्निक। इतना ज्यादा ग्रुप एंड क्वांटिटी ऑफ क्या मिलेगा आपको, थियोरी एंड टेक्निक्स मिलेंगी, जिसके थ्रू कॉर्पस मिलेगा, जिसके थ्रू आप शायद डिसीजन मेकिंग आपकी हेल्पफुल हो जाएगी। ब्रीफली पुट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थियोरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बिजनेस की डे टू डे कामों में, प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करता है, उसमें इंक्लूड करवाता है। समझ रहे हो? तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये वादा नहीं कह रहा है कि आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, बट बिजनेस इकोनॉमिक्स कहता है कि आप आपके लाइफ में जब डिसीजंस लोगे तो डिसीजन लेने में हम आपकी मदद कर, डिसीजन तो आपको ही लेना है, हम नहीं डिसीजन देने वाले, पर वो डिसीजन लेने में तुमने क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या फैक्टर्स माइंड में रखने चाहिए, कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उन सब में हम आपकी मदद करेंगे, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट कहता है। बढ़ूँ आगे, चलो ब्रीफली कंप्लीट करें। दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर्ड टू द मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। आपको क्या बोला है, हम उसको और एक नाम क्या देते हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स जनरली रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थियोरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस, while the theories आगे क्या of economics provide the tools which explains the various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc. ये सब पढ़ेंगे आगे सिलेबस में। business economics applies these tools in the process of business decision making। ये सारी जो थ्योरी और रूल्स है हम बिजनेस डिसीजन मेकिंग में उसको अप्लाई करेंगे। Thus business economics comprises of the part of economic knowledge। इसमें क्या रहता है, इकोनॉमिक नॉलेज है, लॉजिक है, थियोरीज है और एनालिटिकल टूल्स है that are used for rational business decision making। एक नॉर्मल, एक अनबायस्ड, एक किसी भेदभाव के बिना अगर बिजनेस डिसीजन लेना है तो उसके मदद करने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की सारे थियोरी, मॉडल्स एंड सारी चीजें काम आने वाली है। इन ब्रीफ इट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बड़ा अच्छा शब्द यूज किया गया है, दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थियोरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस। अप्लाइड इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स को जो आप अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, बट इकोनॉमिक्स की जो थियोरी है उसको बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में अप्लाई करोगे तो उसे बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज अ क्लोज कनेक्शन विद द इकोनॉमिक थियोरी, दैट इज माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड थियोरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरीज के साथ इन बाकी चीजों को भी जोड़ के एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाता है। अ प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट, जो बंदे को बिजनेस इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, वो प्रोफेशनल जो बंदा रहेगा, हैज टू इंटीग्रेट, उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स फ्रॉम ऑल दीज डिसिप्लिन्स, उसको सब डिसिप्लिन से ऊपर जो नाम दिया गया है, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, ऑपरेशन रिसर्च, इन सब की थ्योरीज को इंटीग्रेट करके, मिक्स करके बिजनेस के सामने जो डिसीजन मेकिंग की चुनौती खड़ी है उसको जवाब देना उसका काम है। आ रहा है समझ में, राइट? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द प्रैक्टिकल मैनेजेरियल प्रॉब्लम, उसको समझने के लिए उसको सब अप्लाई करना पड़ेगा। Business economics is not only valuable for business decision makers but also useful for managers of non-profit organization। क्योंकि कुछ हद तक ऐसे डिसीजन NPOs, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी लेने पड़ते हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। बड़े फटाक से आगे, राइट? पिछला माहौल आपको याद होगा, तो जस्ट हम इसको एक ब्रीफ कंप्लीट करेंगे, फिर नए टॉपिक पे आएंगे तो कुछ अच्छा डिस्कशन करेंगे। डन? तो पहला 1.0 इंट्रोडक्शन हो गया, अपन 1.1 हेडिंग आएंगे, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फटाक से करें। Business economics may be defined as a use of economic analysis to make business decision involving the best use of organization's scarce resources। पीछे जो पढ़ा है वही है घुमाकर, राइट? जोएल डीन का पढ़े। जोएल डीन क्या कहते हैं डेफिनेशन का, वो क्या डेफिनेशन देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का? जोएल डीन कहते हैं दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इन टर्म्स ऑफ आप क्या कर रहे हो, इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज कर रहे हो इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस की जो भी पॉलिसीज बनाओगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली अ कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एज इट इंक्लूड्स द एप्लीकेशन ऑफ सिलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो? कुछ सिलेक्टेड टेक्निक्स जो है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस, ये सब आप एकदम भरी भरी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हो। टॉप सीक्रेट बात कहूँ, ये जो भी नाम दिए गए ना यहाँ पर, ये सारे आपके CA इंटर के सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स हैं। इन सब पे आप एक एक चैप्टर पढ़ने वाले हो।
ये अलग अलग टूल्स हैं जो आपको बिजनेस डिसीजन को हेल्प करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा बताऊं, आखिरी वाले उल्टा चलते हैं, कॉस्ट एनालिसिस। ये आपको बताएगा कि आपका कॉस्ट सही है कि नहीं है, आप नेसेसरी ज़्यादा तो खर्चा नहीं कर रहे हो। तो एक टूल है जिससे आपको समझेगा कि आपका कॉस्ट करेक्ट है कि नहीं है, तो दैट विल हेल्प यू इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। एक है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ब्रेक इवन वर्ड का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन एनालिसिस आपको ये बताता है कि आप बिजनेस में जब प्रोडक्ट बना के बेचोगे तो आपने कितने क्वांटिटी बेचने तक मैं कहूंगा कि तो नो प्रॉफिट नो लॉस में, तो कितने प्रॉफिट नो लॉस में। छोटा सा एग्जांपल, आप कभी किसी वेजिटेबल वेंडर के या फ्रूट वाले के पास गए रहेंगे, समझो फ्रूट वाले का ना थोड़ा सा माल बचा आखिरी का, तो वो फ्रूट वाला क्या बोलेगा, आप उसको बार्गेन करोगे, बहुत अच्छा बार्गेन करेगा, लेके जाओ साहब जी, कल खराब होगा उससे अच्छा अभी का लेके जाओ। तो समझो वो फ्रूट वाले ने सुबह कुछ 10-20 kg जो भी फ्रूट लाया रहेगा उसका, समझो वो 2,000 रुपये में लाया रहेगा। आज शाम तक उसने उसमें से 50, समझो वो उसे 20 kg लाया सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो शायद उसको जो भी खर्चा लगा रहेगा तो वो अपना एक कैलकुलेशन करता है कि ये जो मेरे सामने 20 kg का माल पड़ा हुआ है, इसमें से शायद मैं 8 kg बेच दूं या समझ 12 kg बेच दूं, जो भी क्वांटिटी रहेगी, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस को, मतलब सुबह जो मैंने पैसा डाल के माल लाया हुआ है उसका मेरा खर्चा निकलेगा। अगर समझो 12 kg उसका वो पॉइंट है तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अगर 12 kg वो बेच देगा तो ही विल बी एट नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब उसने जितना खर्चा किया उतना रिकवर हो गया। तो 12 kg के ऊपर जो भी बेचेगा दैट विल जनरेट हिज प्रॉफिट, क्योंकि नीचे वाले यूनिट्स ने उसका ओवरऑल टोटल कॉस्ट निकल, मैं पर यूनिट की बात नहीं कर रहा बेटा, टोटल बोल रहा हूँ, टोटल उसका खर्चा निकाल कर दे देगा। तो ऐसे एनालिसिस है जो आपको आगे सीखना है, डिटेल में चैप्टर्स हैं, फिलहाल मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। Our approach in this text is to focus on the heart of business economics. क्या बोले, वाह, इंस्टीट्यूट जो बोलेगी क्या बात। तो उन्होंने क्या बोला, हमारा फोकस क्या है, हम एकदम दिल पे तीर मारेंगे, हम सिर्फ एकदम मेन पॉइंट पे जाएंगे। वो क्या है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक थियोरी ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड द फर्म्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। हमारा मेन फोकस माइक्रो पढ़ना है, हम माइक्रो को इस सिलेबस में भाव नहीं देने वाले, एक ही चैप्टर रखा है आखिरी का। This theory provides the managers with the basic framework of making key business decision about the allocation of firm's scarce resources. बढ़ू आगे, आ जाए फटाक से, देखें। चलो अगला हेडिंग है आप लोगों का नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर्ड है, तो आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे छोटे एलिमेंट्स पे फोकस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े बड़े एलिमेंट पे है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में बात करता है। तो छोटी छोटी बातों करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी बड़ी वड्डी बातें होंगी, कहाँ पर होंगी बड़ी बातें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बराबर, बिफोर एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इट इज पर्टिनेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। तो अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या कवर करता है, वो पढ़ने से पहले अपन माइक्रो मैक्रो पे लड़ाई करेंगे। अगर आपका 12th स्टैंडर्ड हुआ रहेगा, जो ये वीडियो देख रहा है, आपका ये पार्ट ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में कवर किया गया है, वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट उल्टा कम दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स में आपको बताया दो सब्जेक्ट मैटर आते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। स्टार्ट करें, पक्का। पहले क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले किसके बारे में समझाया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देख सकते हैं बोला गया माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ बिहेवियर। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपन स्टडी करेंगे किसका, स्वभाव, बिहेवियर स्टडी करेंगे ऑफ डिफरेंट, हम देखेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन इकोनॉमिक सिस्टम। शॉर्ट एंड स्वीट बोलूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ एक तरीके का डिटेक्टिव है। तो एक इंडिविजुअल है, तो सुबह से शाम तक क्या कर रहा है, वो तेरे पीछे पड़ा हुआ और ऑब्जर्व कर रहा है, वो तेरा पीछा कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो देख रहा है कि तू सुबह से शाम तक, तू बेटा तू इंडिविजुअली, सबकी बात नहीं कर रहा, तेरे अकेले की बात कर रहा हूँ, तू सुबह से शाम तक क्या कर रहा है, वो तेरे पीछे पीछे आ रहा है, टैंग टैंग टैंग, वो तेरे पीछे पीछे आ रहा है और देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। वो देखना चाह रहा है कि तू जब सुबह घर से निकला, क्लास पे आने के लिए निकला, तो तूने रोल खाया कि नहीं खाया, फिर क्लास के बाद तुम दाबेली खाने गया कि नहीं गया, तो तूने कहाँ कितना खर्चा किया, जब तूने खर्चा किया तो तूने प्रोडक्ट की प्राइस देखी, तो प्राइस देख के तूने क्या डिसीजन लिया। तो तेरा, मैं फर्स्ट इंट्रोडक्टरी में कह चुका हूँ, तेरा फाइनेंशियल बिहेवियर देखना चाह रहा है, तेरा स्वभाव देखना चाह रहा है, तेरी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट किसकी, तेरी इंडिविजुअल की, वो भी पूरी साइकोलॉजी नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल मैटर रिगार्डिंग। बढ़ू आगे, श्योर। तो आपको ये बोला गया है, इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स हाउ द इंडिविजुअल यूनिट्स
इंडिविजुअल यूनिट्स मतलब प्रोडक्ट का यूनिट नहीं, इंडिविजुअल यूनिट है छोटे छोटे यूनिट। तू इंडिविजुअल कंज्यूमर है तो एक यूनिट है, मैं एक दुकानदार हूं, मेरा अगर किराने का दुकान है तो, या फिर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं एक इंडिविजुअल फर्म हूं, राइट। मेक डिसीजंस as to how efficiently allocate their scarce resources. Here, the focus is on small number of group of unit rather than all units combined. मतलब एक एक यूनिट की बात करें, एक इंडिविजुअल है, कुछ कंज्यूमर्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सारे यूनिट्स, यूनिट मतलब कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट क्या? All units combined, and therefore it does not explain what is happening in a wide economic, broad economic environment. बड़े लेवल पे क्या हो रहा है वो ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वी मेनली स्टडी दी फॉलोइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ेंगे हम लोग, कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे, ये सब मैं डिटेल में समझाऊंगा जब मैं चैप्टर पे आऊंगा। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होनी चाहिए, एक कंज्यूमर का बिहेवियर कैसे होता है, वो कैसे बिहेव करता है, फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, इसमें महा चर्चा है, आएगा, ये भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग हैं, उनकी इकोनॉमिक परिस्थिति कैसी है, बिहेवियर ऑफ द फर्म, फर्म्स किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को बेचेंगी, बिहेव क्या है, इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब चैप्टर में आगे ग्रेजुअली पढ़ना, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ हमारा सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड और डोमिनेटेड सिलेबस है, डन। इसलिए मैं उसमें अभी टाइम नहीं डाल रहा हूँ, आगे डिटेल में करूँगा। हम मैक्रो को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैक्रो हमारे सिलेबस में आगे कवर्ड नहीं। जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा तो मैं वड्डी बातें करूंगा, मैं इकोनॉमी की बात करूंगा, जनरल प्राइस लेवल। मैं एक कमोडिटी की, एक सिटी की प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पूरे साल भर गेहूं का प्राइस क्या था, एवरेज इंडिया के अंदर, एवरेज वर्ड समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइस कम ज्यादा होती रहती है, अलग अलग लोकेलिटी में अलग प्राइस होती है। गेहूं की प्राइस क्या थी, चावल की प्राइस क्या थी, वेजिटेबल्स की एवरेज प्राइस क्या थी, शुगर शक्कर की प्राइस क्या थी, अलग अलग दाल है उनकी प्राइस क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या थी, रियल एस्टेट का क्या भाव चल रहा था, आयरन स्टील बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स का क्या चल रहा था, मोबाइल फोन्स क्या थे प्राइसेस, तो सबका एक एवरेज प्राइस ले रहा हूं मैं। आ रहा है कुछ समझ में, राइट? तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हो गई है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फेनोमेना, राइट क्या, और द इकोनॉमी एज अ होल rather than in individual parts. Accordingly, macroeconomics we study the behavior of the large economic aggregates. Aggregate मतलब total. तो हम किसकी टोटल देखते हैं? पूरी इकोनॉमिक एग्रीगेट्स, इकोनॉमी के टोटल देखते हैं, सच एज ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। भाई अकेले ब्रिटानिया ने कितना प्रोडक्शन किया, अकेले अमूल ने कितना प्रोडक्शन किया, अकेले अगर आप टेक्सटाइल में बात करो तो स्पाइकर वाले ने कितनी जीन्स बनाई। हम एक का प्रोडक्शन नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल पूरा इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो देखेंगे, कंट्री का, राइट। तो हम लोग क्या देखेंगे? ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट देखेंगे। हम टोटल कंजम्पशन देखेंगे, भाई नासिक में एक पर्सन ने कितना गेहूं कंज्यूम किया वो नहीं देखेंगे, हम पूरे इंडिया में लोगों ने कितना कंजम्पशन किया वो देखेंगे, लोगों ने टोटल सेविंग कितना किया, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, एंड ऑल्सो हाउ द एग्रीगेट शिफ्ट ओवर द टाइम। ये टोटल कैसे बदलते रहते हैं ड्यूरिंग द ईयर्स, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, वो सब पढ़ेंगे। बट इसमें इन्वेस्टमेंट वर्ड, सेविंग वर्ड में बहुत लंबा डिस्कशन है, वो चैप्टर्स में है, आगे माइक्रो में है, इसलिए मैं तब समझाऊंगा मैक्रो के साथ इसको, डन। इट एनालाइजेस द ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द फर्म, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड मेक डिसीजन। आखिर कोई एक फर्म, एक प्रोड्यूसर, फर्म मतलब एक प्रोड्यूसर पकड़ो। आज के बाद यहां पर जब भी हम फर्म ये शब्द सुनेंगे, आपके माइंड में एक भी शक नहीं आना चाहिए, फर्म मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रोड्यूसर। क्या मेरे साथ है? फर्म्स मतलब कौन आ गए? प्रोड्यूसर। तो ओवरऑल प्रोड्यूसर्स कितना डिसीजन लेंगे? इंडिविजुअल मतलब कंज्यूमर, आप और मैं जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, वो क्या से डिसीजन लेंगे, और हमारा सर्वश्रेष्ठ गवर्नमेंट वो कैसे अपना डिसीजन लेगा, किस एनवायरनमेंट में कैसे डिसीजन लेगा वो। तो यहां पर बोला गया तीन लोगों की बात की, फर्म, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को इंडिविजुअल भी बोला जाता है और कंज्यूमर्स भी बोला जाता है, डन। देखो गड़बड़ ना करें, मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ऐड करना चाहूंगा। समझो फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री है, मेरी इंडस्ट्री में फैक्ट्री है, राइट। मैं से फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन्स बनाता हूँ, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है मेरा, जो भी हो गया एप्पल वगैरह जैसे कोई भी, अपन ने दूसरा मोबाइल फोन निकाला ऐसा, तो मेरा मोबाइल फोन बनाने की कंपनी, मैन्युफैक्चरर हूँ। तो मैं कौन हूँ? फर्म हूँ, गवर्नमेंट हूँ कि हाउस होल्ड हूँ? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जब बात चलेगी तब मैं फर्म हूं, मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पर अब जब मैं अमूल के प्रोडक्शन पे गया, अमूल जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो अमूल
उसमें फर्म है। बट अमूल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अमूल के प्रोडक्शन की बात होगी तो मैं फर्म नहीं हूं, मैं हाउस होल्ड बन गया। क्योंकि तेरे को नहीं लगता जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर भी तो है। अगर मैं एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो मैं सारी थोड़ी, मेरे को जो जिंदगी में लगने वाली चीजें हैं वो सारी थोड़ी मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं। मैं तो एक आधी चीज प्रोड्यूस करूंगा, तो वो प्रोडक्ट के लिए मैं फर्म हूं। पर बाकी प्रोडक्ट्स जब मैन्युफैक्चर होंगे तो उसको तो मैं कंज्यूम करूंगा, तो मैं उधर क्या बन गया, कंज्यूमर, जिसको क्या बोला जाता है, हाउस होल्ड। अब फर्म एक हाउस होल्ड भी हो सकता है। आपको समझना आप किस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। बड़े पक्का ये समझ में आया क्या? तो ये लोग कैसे डिसीजन लेते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। However, it should be kept in a mind that this economic environment represents the overall effect of the innumerable decisions made by million of different consumer and producers. मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो असर पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किससे पड़ता है, मिलियंस ऑफ जो कंज्यूमर्स है वो जो डिसीजंस लेते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। यहाँ पर हम एक एक को स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमको यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी को ही स्टडी करना पड़ेगा। फ्यू एरियाज कम अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको कौन सी चीजें मैक्रो में आती है वो बता रहे जा रहे हैं। नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, हमारे देश का ओवरऑल आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ और लोगों ने इनकम कितनी कमाई साल भर में, इसके ऊपर आपको आखिरी चैप्टर है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी में प्रोडक्ट का प्राइस लेवल क्या चल रहा है और इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं, मतलब लोन के ऊपर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देना पड़ रहा है, ले रहे हो, मतलब बैंक लोन दे रही है, या अगर आप बैंक में एफडी कर रहे हो तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक आपसे एफडी पे इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। आ रहा है समझ? फिर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये देखा क्या तूने, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तुम ये देखते हो कि कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है, ट्रेड की पोजीशन क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या देखा जाता है, अब समझ लें। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट ये सब आपको अगेन सीए इंटर के इकोनॉमिक्स में है आगे। ये जो पुराना सीपीटी का सिलेबस हुआ करता था उसमें ये सारी चीजें हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी के सिलेबस से इन्होंने ये चीजें हटा दी। अब बैकग्राउंड क्या है, मुद्दा क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा लोग, आप लोगों का ओवरऑल बैकग्राउंड ये है, ओवरऑल सिनेरियो ये है कि आरबीआई जो होता है, आरबीआई रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, उसको हमने नाम दिया बैलेंस। आरबीआई एक बीओटी और एक बीओपी मेंटेन करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन करता है। एक आरबीआई की इंटरनल रिकॉर्ड्स होते हैं, आरबीआई का अपना अंदर रखा हुआ सारा हिसाब रहता है। इसमें बैलेंस अल्टीमेटली ये देखता है कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, राइट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो देखता है कि हमारे पास कितना फॉरेन करेंसी आया और हमारे से कितना फॉरेन करेंसी बाहर गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे पास जितना फॉरेन करेंसी आज हाथ में रहेगा, क्योंकि आपको पता है सब कुछ डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ता है, तो आपके पास जितना फॉरेन करेंसी है आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे आज इंडिया को क्रूड ऑयल लगता है, हम क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, पेमेंट डॉलर्स थ्रू करते हैं, जो भी करेंसी चाहिए अपन डॉलर थ्रू कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में बहुत बार 1991 ये साल हमारे लिए बड़ा ही खराब मनहूस साल माना जाता है, पर आपको पता है देयर इज ऑलवेज दी, यू कैन से देयर इज अ पॉजिटिव साइड ऑफ डिस्ट्रक्शन एज वेल। कुछ गलत होने के बाद भी कुछ अच्छा होता है। तो 1991 में इंडिया की हालत बहुत खराब थी, अगर आपने सुना होगा, इकोनॉमिकल सेंस में बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम प्यार से एलपीजी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी। 1991 का एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था, जिसने हमारे देश को बदल दिया। आज कहीं ना कहीं पर हमारी इकोनॉमी जहां तक पहुंची उसके पीछे थोड़ा बहुत हाथ, या मैं बोलूँगा इसकी शुरुआत 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से हो पाई थी। 1991 का जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था ये मजबूरी में लेना पड़ा था, क्योंकि हालत बहुत खराब थी कंट्री की। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा हालत क्यों खराब थी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे पास वो जो रजिस्टर होता है जिसमें सारा लिखा जाता है कितना फॉरेन करेंसी आ गया, हमारे पास इतना ही फॉरेन करेंसी पड़ा था कि हम 3 डेज का इंपोर्ट क्रूड ऑयल कर पाएंगे। 3 दिन, बेटा मैं पूरे देश की बात करूँ, पूरे देश के गवर्नमेंट के पास हमारे 3 दिन का क्रूड ऑयल, दैट इज जो पेट्रोल आप बना, उतना इंपोर्ट करने जितना ही फॉरेन करेंसी पड़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। इतनी खराब और भयंकर हालत थी 1991 में। समवेयर क्रेडिट गोज टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने वो टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे,
जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को बहुत स्मार्टली ड्राफ्ट किया था और उन्होंने रियलाइज किया कि अब हालत खराब है और हमें फटाफट कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर वो टाइम पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शायद नहीं लॉन्च हुई रहती तो इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब हो गई रहती। बढ़ूँ आगे। सो इस तरीके को इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर आपको दिखाएगा एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी, दैट इज हमारी करेंसी की क्या वैल्यू चल रही है बाहर फॉरेन में। जैसा आप देख रहे हो आप, इंडियन रुपी वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, 76 रुपीज तक वैल्यू पहुंच चुकी है। डन। तो ओवरऑल लेवल्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, देश में कितना टोटल सेविंग्स हो रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है। अब मैं आप इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाता हूँ। व्हेनेवर इकोनॉमिक्स में तुम इन्वेस्टमेंट बोलते हो तो इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ वो बैंक में जाके पैसे डालने को इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको तो सेविंग्स बोला जाता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब टू स्टार्ट द बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन लैंड प्लांट मशीनरी। आई रिपीट, यहां पर जब इन्वेस्टमेंट बोला जाता है तो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स होता है। कैपिटल गुड्स समझते हैं, फिक्स एसेट जो लॉन्ग टर्म में चलने वाले। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, दो इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक फर्म इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है। फर्म कौन सा इन्वेस्टमेंट करती है, अगर मैं फर्म हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं फैक्ट्री खरीदूंगा, मैं मशीनरीज डालूंगा, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिसको आप कैपिटल कहते हो। यहां पर अकाउंट्स की टर्मोलॉजी और इकोनॉमिक्स की टर्मोलॉजी में बहुत फर्क है। जैसे अकाउंट से फर्म का मतलब अलग है, यहाँ पे फर्म अलग है। वहाँ पे फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म है अकाउंट्स में, यहाँ पे फर्म मतलब बिजनेस मैन की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसको अकाउंट्स में आप कैपिटल कहते थे, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट किसमें इन्वेस्ट करती है, रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। अरे समझ, इन शॉर्ट इधर इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म असेट कन्वर्ट होते हैं, क्रिएट होता है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो आप देखोगे इंडिया में ओवरऑल सेविंग्स कितना चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना चल रहा है, ये कौन पढ़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। भूले मत, हम जो भी पढ़ रहे हैं किस रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बढ़ूँ आगे। द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है, जिसको आप जीडीपी कहते हो, 4%, 5%, 8%, 10%, दैट इज नोन एज जीडीपी। While business economics is basically concerned with microeconomics, macroeconomics analysis has also got an important role to play. Normally मैंने मेरे बिजनेस में क्या डिसीजन लेना, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलता था, तूने तेरे बिजनेस में डिसीजन कैसे लेना। तो नॉर्मली बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, नॉर्मली बिजनेस इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ डीलिंग क्या है, डिस्कशन क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स का माइक्रो। क्योंकि मैं एक बिजनेस एंटिटी हूं तो मैं डिसीजंस कैसे लूंगा वो यहां पर पढ़ाया जाता है, मानते हैं तो। बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि थोड़ा बहुत मैक्रो का भी टच लगेगा। ओवरऑल कंट्री में क्या चल रहा है वो भी तेरे को देखना पड़ेगा अगर तू डिसीजन ले रहा है तो। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन इन एन इकोनॉमी विच विल immensely influence the individual firm's performance as well as its decision। मतलब अभी तक जो हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिसीजन पढ़ा था, डिस्कशन किया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स तेरे को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। तो जब तुम बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसके डेफिनेशन से ये इंटरप्रिटेशन निकलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो मेन रोल है, प्राइमरी रोल है, वो माइक्रो लेवल का है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं मेरा डिसीजन कैसे लूं, ये मुझे बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। तो प्राइमरीली बिजनेस इकोनॉमिक्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ माइक्रो अप्रोच, पूरा माइक्रो लेवल का अप्रोच एज्यूम किया जा सकता है। बट आप भूल नहीं सकते कि भले आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को माइक्रो लेवल का ट्रीट करेंगे बट मैक्रो को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान ने, एक छोटे बिजनेसमैन ने अगर अपना कोई डिसीजन लेना है तो उसको डिसीजन लेते वक्त कंट्री की सिचुएशन को, मतलब मैक्रो फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेना है कि मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है, मैक्रो लेवल पे क्या डिसीजंस चल रहे हैं, और उस डिसीजन को, क्योंकि उधर की सिचुएशन तेरे डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। सिंपल है, लॉजिकल है। क्योंकि अगर उधर कुछ होगा, जैसे अगर कल जाके आज कोरोना की वजह से गवर्नमेंट को डिसीजंस लेती है तो हमारे डिसीजंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इजंट इट सो? डन, फाइन। बिजनेस फर्म्स नीड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट in which they have to function। फॉर एग्जाम्पल जैसे तेरे को अगर का बिजनेस कर रहा है, तो अगर नासिक में बिजनेस कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, तो तेरे को बड़े लेवल का भी आइडिया होना चाहिए, तो तेरे को बिजनेस करते समझेगा। नॉलेज रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेशन, आपको पता होना चाहिए मार्केट में इन्फ्लेशन की क्या रेट चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, विल बी यूजफुल फॉर द बिजनेस इकोनॉमिस्ट इन फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं भाई, बैंकों के रेट क्या है। जैसे आज की परिस्थिति में देखूं तो मुझे लगता है और एफडी के रेट्स गिरेंगे और बैंक के लोन के रेट्स गिरने वाला है।
गवर्नमेंट प्रमोट करेगी क्या कि आप खर्चा करें। देखो अभी की जो परिस्थिति है, पोस्ट लॉकडाउन क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लॉकडाउन जब खत्म होगा और हम सब नॉर्मल स्टेज पे आएंगे तब क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको लगता है सब इसी पे चर्चा चल रही है आजकल, न्यूज़ पे भी आपको बहुत कॉमन दिखेंगी, लोग भी आजकल इसी के बारे में बात करते हैं कि एक बार जब लॉकडाउन खत्म होगा और हम रेगुलर हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हम इस वेंटिलेटर पे लगी हुई हमारी इकोनॉमी को कैसे वापस स्वस्थ कर पाएंगे। इसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है। अब जब इसके ऊपर बहुत सारी बातें चल रही है तो आपको नहीं लगता इसके अंदर एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेबल है वो है स्पेंडिंग। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था, लोग जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना जल्दी इकोनॉमी का रिवाइव होगी, वापस जिंदा होगी। अब लोगों के पास पैसा तो नहीं है खर्चा करने के लिए, या पैसा है तो लोग डरे हुए हैं खर्चा करने के लिए। क्या पता कल जाके आगे और हालत खराब हो जाए तो वो अपने एक्यूमुलेटेड फंड्स को आगे यूटिलाइज नहीं करना चाहते, दे वांट टू विथहोल्ड देयर फंड्स, उनको अपने पैसे पकड़ के रखने हैं। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट चाहेगा कि लोग स्पेंड करें, बट लोग स्पेंड करने को तैयार नहीं है, तो क्या करें। तो गवर्नमेंट मतलब आरबीआई ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट रेट लोन के कम कराती है, जिससे लोन का अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग इजीली सोचेंगे लेने के लिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हाउसिंग लोन का। आज से 2 साल पहले हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था 9.5-10%। पिछले 2 से 3 सालों में गवर्नमेंट ने धीरे धीरे, आरबीआई ने मतलब गवर्नमेंट इन द सेंस, धीरे धीरे हाउसिंग लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए। 9 से 8.5 हुआ, 8 हुआ, एट प्रेजेंट इट इज रनिंग अराउंड 7 to 7.15%। 7 से 7.15% आज की डेट पे लोन के ऊपर, हाउसिंग लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इस तरह जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लोग उतना इजीली क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट वाला हूँ, मैं बिल्डिंग्स बनाता हूँ, उसमें फ्लैट, शॉप, ऑफिसेज बना के बेचता हूँ, मैं बिल्डर हूँ। तो अगर मैं बिल्डर हूँ तो मुझे ये चीज़ की समझ होनी चाहिए कि मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट क्या सोच रही है। क्या गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये इंटरेस्ट रेट अगर मुझे कम होने वाले लग रहे हैं तो मुझे पता है कल आके लोग और घर और शॉप और ऑफिसेज खरीदेंगे, तो मेरे मार्केट में मेरा डिमांड बढ़ने का चॉइस है। तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैक्रो फैक्टर्स के ऊपर। आ रहा है कुछ समझ में? पक्का? चलें, फाइन। मोर ओवर द लॉन्ग रन ट्रेंड्स इन अ बिजनेस वर्ल्ड आर डिटरमाइंड बाय प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। आज से 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, ये मेरे अकेले के डिसीजन पे नहीं डिपेंड करेगा, ये इकोनॉमी के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। तो मैक्रो आपको लॉन्ग टर्म आइडिया देता है। इधर तक क्लियर है? तो आज के डिस्कशन में हमने माइक्रो बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले माइक्रो और मैक्रो का फर्क समझा है, और इस सिलेबस में आप आगे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ोगे, ये माइंडसेट में लेके चले। आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द सेंस ऑफ माइक्रो ही देखना है, बट फैक्ट ऐसा है कि आप मैक्रो को अवॉइड करके नहीं चल सकते, मैक्रो भी लगेगा। इज दैट वेरी क्लियर? सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस पार्ट। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, कल के लेक्चर में हम आगे का पार्ट दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और हम कहीं पे बिजनेस इकोनॉमिक्स में फाइनली जंप करेंगे। एम आई वेरी क्लियर विद दिस? तब तक के लिए मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, God is great. Take care. Bye bye.